کا سرطان۔ اگر 1970 کی ابتدا میں سیاستدان، تاجر اور دانشور مغربی پاکستان سے ذہنی رابطہ توڑ چکے تھے تو کیا بنگالی سپاہی اس وبا سے محفوظ تھے؟ کیا کسی اندرونی شورش کو فروغ کرنے کے لیے ان پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا؟ کیا ہندوستانی جارحیت کی صورت میں ان کا طرز عمل محب وطن سپاہیوں جیسا ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں، کیا وہ ذہنی اور جذباتی طور پر باقی فوج سے ہم آہنگ تھے؟ میں پہلا شخص نہ تھا جس کے ذہن میں یہ سوال کلبلا رہے تھے۔ مجھ سے پہلے بھی کئی افراد اس تشویش کا شکار بن چکے تھے۔ ان میں سے ایک میجر جنرل خادم حسین راجہ تھے، جو مشرقی پاکستان میں متعین واحد ڈویژن 14 کے جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے۔ زیر کمان سپاہیوں کی نفسیاتی الجھنوں سے باخبر رہنا ان کا سرکاری فرض بھی تھا۔ ان کے دل میں شبہات کا کیڑا اس وقت پیدا ہوا جب 1969 کے آخر میں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہوئے اور بنگالی سپاہیوں کو اسے فروغ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس نازک موقع پر بنگالی سپاہیوں کا نظم و ضبط بظاہر قائم رہا، مگر انہوں نے مؤثر کارروائی کرنے سے گریز کیا۔ یوں پتہ چلتا تھا کہ وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے جنرل راجہ نے انہی دنوں جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کو ایک چٹھی لکھی، جس میں مقامی صورتحال کا جائزہ کرنے کے بعد سفارش کی گئی کہ علیحدہ علیحدہ بنگالی اور غیر بنگالی یونٹوں کا فرق ختم کیا جائے اور بنگالی نفری کو غیر بنگالی پلٹنوں میں ضم کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ مشرقی پاکستان کی نازک صورتحال کے پیش نظر وہاں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے یونٹوں کی تعداد بڑھائی جائے۔ جنرل راجہ کی تجویز صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان کی اس تقریر کی روح سے متصادم تھی، جو انہوں نے 28 جولائی 1969 کو قوم کے نام نشر کی تھی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ افواج پاکستان میں بنگالیوں کی تعداد دگنی کر دی جائے گی اور یہ کارروائی بنگالیوں کی شکایات دور کرنے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ صدر پاکستان نے، جو فوج کے کمانڈر ان چیف بھی تھے، یہ فیصلہ کرتے ہوئے مشرقی پاکستان کی صورتحال کو کیوں پیش نظر نہ رکھا؟ اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں بنگالی سپاہیوں کی نفسیاتی کیفیت کا احساس نہ تھا، اور یا وہ کسی سیاسی مسلط کے تحت اس سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ صدر پاکستان اور جنرل راجہ کی سوچ میں اس تضاد کے باوجود مؤخر الذکر کو اپنی تجویز کی صحت اور افادیت پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور GHQ پر متواتر زور دیتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد ایک سہانی صبح کو GHQ سے ایک خفیہ خط موصول ہوا۔ جنرل صاحب سمجھے کہ ان کی امیدوں کی کلی کھلنے لگی ہے۔ انہوں نے پر اشتیاق بےتابی سے خاکی لفافہ کھولا۔ لفافے کے اندر ایک اور لفافہ تھا۔ اسے چاک کیا، خط کا متن پڑھا تو اس میں کچھ اور ہی نکلا۔ اس خط کے ذریعے جنرل راجہ کو کمانڈر ان چیف کا یہ حکم پہنچایا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں 2 مزید خالص بنگالی پلٹنیں کھڑی کی جائیں۔ پہلے سے موجود بنگالی پلٹنوں کی تعداد 7 تھی، جن میں سے 4 مشرقی پاکستان میں موجود تھیں۔ گویا اب اس صوبے میں خالص بنگالی پلٹنوں کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ یاد رہے، ان دنوں مشرقی پاکستان میں غیر بنگالی پلٹنوں کی تعداد 8 تھی۔ GOC کے لیے یہ حکم تشویش کا باعث تھا۔ انہوں نے اس مسئلے پر مزید سوچا اور طے کیا کہ اس سلسلے میں مزید خط و کتابت بے اثر ہوگی، اس لیے خود جا کر اس حکم کے خطرناک مضرات سے GHQ کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ راولپنڈی پہنچے اور متعلقہ حکام کو بتایا، اگر آپ کا مقصد ایک الگ بنگالی آرمی کھڑا کرنا ہے تو بے شک نئی سے نئی بنگالی پلٹنیں کھڑی کرتے جائیں، لیکن اگر آپ فوج اور ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں تو ازارۂ مہربانی موجودہ بنگالی پلٹنوں کو باقی فوج میں ضم کر دیا جائے۔ جب یہ نقطہ نظر صدر صاحب کو پیش کیا گیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیاسی مسلطوں کا تقاضا تھا کہ فوج میں بنگالی نمائندگی کو بڑھایا جائے، اور دوسری طرف مقامی کمانڈر مشورہ دے رہا تھا کہ موجودہ بنگالی پلٹنوں کا وجود ختم کر دیا جائے۔ فیصلے کی اس مشکل ساعت میں جنرل یحییٰ خان نے وہی کیا جو تذبذب کے شکار کمانڈر عموماً کیا کرتے ہیں۔ جنرل یحییٰ نے ایک بین راستہ تلاش کیا اور فیصلہ دیا کہ نئی پلٹنیں قائم کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ بنگالی پلٹنوں کو غیر بنگالی پلٹنوں میں ضم کرنے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ 19FF میں بنگالی سپاہیوں کی ایک کمپنی شامل کر دی گئی۔ بعد میں 25 پنجاب میں ایک بنگالی کمپنی ضم کرنے کا پروگرام تھا۔ خیال تھا کہ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو ضم کرنے کی اس اسکیم کو آگے بڑھایا جائے گا۔
19FF में बंगाली नफरी की शमूलियत के मौके पर 31 दिसंबर 1969 को फोर्ट्रेस स्टेडियम ढाका में एक तकरीबी परेड हुई जो बखैर व खूबी अंजाम पाई। अलबत्ता GCO के जहन में ये कांटा बराबर खटकता रहा कि अगर 19FF में जमशुदा बंगालियों ने किसी बहाने मसलन हम गंदम के बजाय चावल खाएंगे शोरश बर्पा कर दी तो ये तजुर्बा महंगा पड़ेगा। GOC का खदशा बेबुनियाद साबित हुआ। 19FF बंगाली नफरी समेत मशरकी पाकिस्तान में अपने फराइज अंजाम देती रही और बाद अज़ा अपनी बारी पर मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल हो गई बखैर गुस्शत। इस कामयाब तजुर्बे के बावजूद जम करने की स्कीम आगे ना बढ़ सकी क्योंकि इस बारे में सदर मुमलिकत ने ज़बानी आस्था रवी का हुक्म दे रखा था। ये तो थी रवादाद अक़दाम की पॉलिसी की। अब जरा बंगाली नफरी को दुगना करने के हुक्म का भी हाल सुन लीजिए। इस हुक्म पर बड़े जोर शोर से कार्रवाई शुरू हुई। अबलाग आमा के ज़राए को इसकी तशहीर के लिए खसूसी अहकाम जारी हुए। लड़कते लड़कते एक हुक्म मुझ तक भी पहुंचा क्योंकि मैं भी इश्तिहारी मशीनरी का एक अदना सा पुर्जा था। हुक्म हुआ इस मुहिम को मकबूल बनाने के लिए एक इखबारी मजमून लिखो। मैं उस हुक्म को पल्ले बांधने छटागांग पहुंचा जहां ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का सेंटर था। जरूरी कवायफ वहीं से मिल सकते थे। वहां पहुंचा। सेंटर कमांडेंट अपने दफ्तर के बाहर पुरबहार चमनिस्तान में धूप सेंक रहे थे जिनको अपनी बंगाली कौमियत का एहसास और मुजीबुर रहमान के जाती कुर्ब पर बहुत फख्र था। वो लान में बार बार पंजों के बल खड़े होकर अपने आप को ऊपर की तरफ खींचते। बज़ाहिर ये जिस्मानी वर्जिश की उम्दा आदत थी लेकिन शायद उसके पीछे कोई नफ्सियाती उलझन थी जो मेरी मौजूदगी 6 फुट कद में और शदीद हो गई थी। कर्नल साहब ने मेरी आमद का मकसद जानते ही दो टोक कहा, बंगालियों का कोटा दुगना करने का क्या डिंडोरा पीटना चाहते हो? छोड़ो इसको, क्योंकि अगर सदर के हुक्म पर 100% अमल हो जाए तो भी अफवाज पाकिस्तान में बंगालियों की तादाद बमुश्किल 15% हो जाएगी। हालांकि वो कौमी आबादी का 56% हैं। कर्नल मोजमदार से कोई आधा पौन घंटा बसीरत हासिल करने के बाद मैं उनके दफ्तर से निकला और एक और मगरबी पाकिस्तान दोस्त के यहाँ गया। दोपहर के खाने पर मेजबान ने सेंटर कमांडेंट का अज खुद जिक्र छेड़ा और बताया कि चंद माह पहले बंगाली रंगरूटों का एक दस्ता सेंटर में अपनी तरबियत मुकम्मल करने के बाद कराची होने लगा। तो कर्नल साहब ने उसे खिताब करते हुए फरमाया, अब तुम खुददार बंगाली सिपाही हो, तुम वहाँ पंजाबी अफसरों के बूट पॉलिश करने नहीं जा रहे। वक्त आने वाला है कि वो तुम्हारे जूते पॉलिश किया करेंगे। कर्नल मोजमदार बंगाली सिपाहियों के वाहिद सरपरस्त और बेख्वा नहीं थे। उन्हें एक हाजिर नौकरी वाले बंगाली लेफ्टिनेंट जनरल और रिटायर्ड कर्नल की आनत भी हासिल थी। मैं उन दोनों से मिला हूँ। फरवरी में ढाका के शुमाल में जोधीपुर के मकाम पर एक तकरीब होने वाली थी। उसके मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल वसीउद्दीन थे। उन्हें वहाँ ईस्ट बंगाल रेजिमेंट की 2री बटालियन जूनियर्स टाइगर्स को रेजिमेंटल कलर अता करना था। जनरल वसीउद्दीन इस रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट एजाजी सरपरस्त न थे, लेकिन उसकी असल सरपरस्त कर्नल MAG उस्मानी थे जो फौज से रिटायर होकर अवामी लीग की सियासत में सरगर्म हिस्सा लेते थे। बाद में वो अवामी लीग के टिकट पर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए और मुजीब काबीना में वजीर बने। जनरल वसीउद्दीन इस तकरीब के सिलसिले में मगरबी पाकिस्तान से ढाका पहुंचे तो 14 डिवीजन के ऑफिसर्स मेस में ठहरे। उन्होंने मुझे तलब फरमाया। कर्नल उस्मानी भी मौजूद थे। जनरल साहब ने अपन तकरीर का मसूदा मुझे दिया ताकि तकरीब से पहले इसकी नकलें बनवा ली जाएं। मैं तकरीर लेकर वापस आ गया। अगले रोज फिर बुलाया गया और इस बार एक नई तकरीर मेरे हवाले की गई। हुक्म हुआ कि पहली तकरीर मनसूख, नई तकरीर तबाह कराई जाए। मैंने दोनों तकरीरों का मवाजना किया। पता चला कि दूसरी तकरीर में कर्नल उस्मानी की खिदमत को ज्यादा सराहत से सराहा गया है और तमाम बंगाली सिपाहियों से कहा गया है कि आड़े वक्त में उनकी रहनुमाई पर भरोसा करें। तकरीब के बाद इस तकरीर की छपी हुई नकलें मुल्क के दोनों बाजुओं में तमाम बंगाली फौजियों में तकसीम की गईं। कर्नल उस्मानी मनहनी जिस्म, पुस्त कामत, सन खूरदा शख्स थे। उनके स्याह चेहरे पर सफेदी का वाहिद निशान मूंछों का गप्फा था जो उनके रुखसारों के गालिब हिस्से पर फैला हुआ था। कर्नल साहब के देरीना दोस्त मजाक से कहा करते थे कि मूंछों से लटका हुआ शख्स देखना हो तो उस्मानी को देख लो। बहरान में कर्नल उस्मानी के किरदार के बारे में मुफस्सिल जिक्र आगे आएगा। कर्नल रिटायर्ड उस्मानी, कर्नल मोहजमदार और जनरल वसीउद्दीन बंगाली सिपाहियों और अफसरों में
खासा असर व रसूख रखते थे। मेजर जनरल खादिम राजा इस सूरत हाल से पूरी तरह आगाह थे। वो जानते थे कि बंगाली सिपाही अब ऐसी जहनी कैफियत में हैं कि वो अपने गिरदो पेश के सियासी हालात नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनरल साहब के सामने ये मिसाल मौजूद थी कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान फौजी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जज्बाती वाबस्तगी रखते थे और उनकी हमदर्दियाँ आज़ादी के परवानों के साथ थीं। अगर इस सियासी एहसास के बावजूद आज़ादी मिलने तक उनका डिसिप्लिन कायम रहा तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सियासी मद्दोजज़र के बावजूद बंगाली सिपाहियों का नज़्म ज़ब्त गैर मुआयना अरसे तक कायम रह सकेगा। जनरल राजा के अंदेशों की एक बुनियाद अगरतला साजिश थी, जिसमें एक फौजी प्लान भी शामिल था। जनरल राजा के मुताबिक इस प्लान के 3 हिस्से थे। तमाम यूनिटों के असला खाने लूटना, गैर बंगाली फौजियों को गैर मुसल्लह करना और छावनियों पर कब्जा जमाना। इस सूरत हाल से निपटने के लिए जनरल राजा ने किसी सरकारी काम के बहाने अपने ब्रिगेडियर कमांडरों को, जो इत्तेफाक से गैर बंगाली थे, ढाका तलब किया। उन्हें इम्कानी खतरे के बारे में एतमाद में लिया और हिदायत की कि वो एहतियातन अपनी यूनिटों का कुछ असलहा बैरकों में रखें ताकि आड़े वक्त काम आ सके। जनरल राजा ने मुझे बताया यह मसला इतना नाजुक था कि मैं उसे अहाता तहरीर में ना ला सका। GOC के इन खदशात में हकीकत का कोई अंसर था या वो महज एक पंजाबी जर्नेल के दिमाग का फितूर था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल साहब के दिल में पैदा होने वाले वसवसे खदशात को जन्म दे रहे थे, क्योंकि हम हालात के ऐसे भनोर में घिरे हुए थे जहां वाकयात का मुनक़ती तज्जिया मुश्किल था। मसलन एक दिन यूं ही मैं अपने दफ्तर से निकला और टहलता टहलता एक बंगाली अफसर के दफ्तर चला गया। वहाँ एक और बंगाली बैठा था। दोनों महो गुफ्तगू थे। मुझे देखते ही खामोश हो गए। खामोशी के चंद नागवार लम्हे इंतजार करने के बाद मैंने कहा, कहिए जनाब, क्या हो रहा है? मेजबान बोला, दरअसल हम अगले इतवार को मछली के शिकार का प्रोग्राम बना रहे थे, तो क्या मैं भी चलूं? नहीं, मेरा मतलब है अभी प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ। बात खत्म हो गई, मगर जवाबों के अंदाज से मुझे शक गुजरा कि वो दरे हकीकत मुजीब के बांग्लादेश की बातें कर रहे थे और मुझे देखकर मछली का जिक्र ले बैठे। हालांकि ये भी हो सकता है कि वो वाकई शिकार का प्रोग्राम बना रहे हों। हकीकत और वहम को जुदा करना वाकई नामुमकिन था। इस अंधेरे में बसीरत हासिल करने के लिए मैंने लेफ्टिनेंट कर्नल साहिबजादा याकूब अली खान से मुलाकात की और इस खदशे का इजहार किया कि शायद बंगाली और गैर बंगाली अफसरों के दरमियान एतमाद का पुल टूट चुका है। जनरल याकूब, जो मुझसे ज्यादा बाखबर और दानिशमंद थे, अपने रद्द अमल को पी गए। उन्होंने मुझे बिठाया और एक पुरमगज फलसफियाना खुतबे से मेरी तवाज़ो की। मैं अपने वसवसे लिए वापस चला आया। शायद जनरल याकूब और मैं फौजी अफसरों के 2 तबकों की नुमाइंदगी करते थे। मुझ जैसे जूनियर अफसरों को अपने कम तजुर्बे और महदूद मालूमात की बिना पर राई भी पहाड़ नजर आती थी, और जनरल साहब जैसे जहन रसा रखने वालों को पहाड़ भी रसाई लगता। हकीकत तक पहुंचने में एक दुश्वारी ये भी थी कि हर चीज बज़ाहिर डिसिप्लिन के भारी खौल में लिपटी हुई थी। यह खौल अभी कायम थी। इसमें शगाफ डालने के लिए अवामी लीग के पास इंतखाबी सरगर्मियों के 8 महीने बाकी थे।